उत्तर भारत का सब तो बड़ा मैडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई पिछले लंबे समय तो ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। पीजीआई ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪੀਐਨ ਚਟਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਆਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ सेंटर ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ट्रॉमा सेंटर जो है वो 10 साल पहले सेंक्शन हुआ था। उस टाइम इसका बजट नियर अबाउट 40 करोड़ था, बट ये फंक्शनल हम कर पाए 2011 में। कंस्ट्रक्शन इसका डिले हो गया था कुछ रीजंस के कारण, तो मई 2011 में हमने इसको शुरू किया था और आज के दिन ये ऑलमोस्ट 90% इन वर्किंग कंडीशन में है। टोटल कॉस्ट इसको सोचें तो 55 करोड़ के करीब इस पर खर्च हो गया है, इक्विपमेंट, मैन पावर एंड बिल्डिंग पे। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ दाखिल किया जाता है। ओपीडी के पेशेंट्स पहले हमारे पास 30 एवरेज अगर आते थे तो आज 50 आ रहे हैं। और एक बात है कि पहले हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज थी जिसमें ट्रॉमा और नॉन ट्रॉमा दोनों आते थे। अब हम सिर्फ जो एडवांस ट्रॉमा सेंटर में हैं उन्हीं पेशेंट्स को लेते हैं जिनको रोड साइड एक्सीडेंट हो, पेट से गिर गया हो, इसे एक्सीडेंट के बाद किसी ट्रॉमा हुआ है तो वो पेशेंट वो लेते हैं। नॉन ट्रॉमा जिसको सिंपल जैसे कि पेट दर्द है वो हम ट्रॉमा सेंटर में नहीं लेते। किसी को बर्न इंजरी हाँ हम ट्रॉमा सेंटर में लेते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रॉमा। जो भी एमरजेंसीज हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रॉमा, नॉन ट्रॉमा। ट्रॉमा एडवांस ट्रॉमा सेंटर में आता है, एमरजेंसी सर्जिकल एमरजेंसी में जाती हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ, ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ੀਅਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 120 पेशेंट्स आते हैं पर डे और मेजॉरिटी पेशेंट होते हैं न्यूरोसर्जरी और आर्थोपेडिक्स के, और दूसरे भी होते हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी के, जनरल सर्जरी के, यूरोलॉजी के, ईएनटी के, डेंटल के, ये पेशेंट आते हैं। पर मेजॉरिटी हैं आर्थोपेडिक्स ट्रॉमा और न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा। तो अब इतने हमारे पास जगह है, 10 पेशेंट्स की जगह है आईसीयू की, और साथ में रिससिटेशन भी करते हैं। हमारे पास रेजिडेंट्स भी हैं, सारे हैं स्टाफ, और इससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बहुत डिक्रीज़ हुई है। इसका यही रीज़न है क्योंकि पेशेंट ठीक होके जाते हैं और वो इसे स्प्रेड बाय माउथ, ओके, एंड देन दे विल कम टू आवर एडवांस ट्रॉमा सेंटर। अब हर एक फैसिलिटी इस सेंटर के अंदर है और पेशेंट को थोड़ा सा बेड भी जल्दी मिल जाता है, आईसीयू केयर भी बेटर मिलती है। हमेशा कुछ भी हम ऐड करते हैं वो पेशेंट के बेनिफिट में तो होता ही है। हाँ, रश भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम किसी पेशेंट को हम ना नहीं कर सकते, किसी पेशेंट को हम रेफ़र नहीं कर सकते कि आप उस सेंटर में चले जाइए। ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम जितने पेशेंट आते हैं
आप एम्स की बात करेंगे अगर दिल्ली की, तो वहाँ पर वो पेशेंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा फर्स्ट एड देते हैं और पेशेंट को सफदरजंग या दूसरे हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। पर पीजीआई में हम ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है हम कि हम पेशेंट को कहीं हायर, क्योंकि देयर इज़ नो अदर हायर सेंटर। जो पेशेंट आ गया हमको उसी को ट्रीट करना ही है हमको, तो हम उसको कर पा रहे हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 100 ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। सारी पेशेंट्स इमरजेंसी के होते हैं, बट उनमें प्रायोरिटीज डिसीजंस जो होते हैं वो एकदम से करने पड़ते हैं। कई पेशेंट को एकदम से हमको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, कई को हमको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ता है, और कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं, आधा पौना घंटा वेट भी कर लेंगे तो उनको सेहत पे उनके को वो नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में रहते हैं वो सारे डिपार्टमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे होते हैं। न्यूरोसर्जरी एक ही पेशेंट को तीन डिपार्टमेंट कई बार देखना पड़ता है। जैसे हेड इंजरी उसी पेशेंट को है, उसी को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत है। चेस्ट इंजरीज हो जाती हैं तो CTVS की जरूरत पड़ती है, तो वो पेशेंट ऑब्जर्वेशन एरिया में जाते हैं। आफ्टर दैट वी शिफ्ट इनटू द वार्ड और प्राइवेट रूम्स। जो वार्ड्स हैं हमारे पास 61 बेडेड वार्ड है, जनरल वार्ड जिसको कहते हैं हम। उसमें हमने कुछ बेड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ऑर्थोपेडिक्स के। कुछ पेशेंट्स रहते हैं कहीं न्यूरोसर्जरी के हैं, कुछ डेंटल के हैं, कुछ ENT के, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्राइवेट रूम्स सबका कॉमन है, दोज हु कैन अफोर्ड कैन स्टे इन प्राइवेट रूम्स। अभी हमारे पास 22 बेडेड प्राइवेट रूम्स हैं बस, पर इस टाइम जो हम चला पा रहे हैं वो तकरीबन हम 12 पेशेंट्स को हम प्राइवेट रूम की फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं। बाकी अभी हमने शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਤੋਂ 30 ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ PGI ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਜ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20% ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। हमारे पास पर मंथ अबाउट 30 पेशेंट्स आते हैं जो बड़े क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं। बेसिकली वो होते हैं हेड इंजरी के पेशेंट, जो सीवियर हेड इंजरी के होते हैं, जो सारे जो रीजन के, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कल इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं पेशेंट्स, नियर बाई दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और हिमाचल से आते हैं। ये सारे पेशेंट वहाँ पे जो न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे आते हैं। तो हम एडमिट करते हैं अबाउट 30 पेशेंट्स पर मंथ, और जितने भी पेशेंट होते हैं सारे वेंटिलेटर पे होते हैं। सबको बड़ी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करते हैं, और हमारे पास हैं 25 नर्सेज हैं हमारे पास, और राउंड द क्लॉक हम 4 डॉक्टर्स अपने पास रखते हैं। और ये इसमें से एक डॉक्टर जो भी पेरिफेरल कॉल्स होती है ना हमारी, जो पेशेंट रिससिटेट करना हो सारे ट्रॉमा सेंटर में और एमरजेंसी में, वो जाते हैं वहाँ पे, वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, फिर वो ICU में लाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन भी उनकी कितनी नीड है। पर हम उससे ज़्यादा केयर करते हैं पेरिफेरी में, क्योंकि जो पेरिफेरी में जिनकी नीड अच्छी होगी ना वही फिर उनको ICU में ले आते हैं। और एक पेशेंट कम से कम उनकी स्टे 5 से 7 दिन की होती है, और मोर्टेलिटी हमारी बड़ी कम है, अबाउट 20% है इस टाइम। ਹਾਲਾਂਕਿ PGI ਦੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ATC ਦੇ ICU ਦੀ ਬੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ ਵਿਖੇ 22 ਬੈਡਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 14 ਬੈਡਸ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। इधर बेड नहीं मिला जी अभी तक, तो आज पट्टी को बोल रहे हैं कोई नहीं कर देंगे, ठहर के कर देंगे। अच्छा। ये कुछ ही बोल रहे हैं। आज 8 दिन हो गए, एक बार पट्टी हुआ। पहले दयानंद जाम ने रखा है 27-28 दिन, 8.5 लाख रुपया उधर लगाया। अब पैसा नहीं पास में, घर में साल ना कोई नहीं मिला। ये उसका एक्सीडेंट हो गया था, पैसे की वजह से उसको डिस्चार्ज कर दिया। कह रहे पैसे लेके आओ। जबकि यहाँ से 20 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साइट्री पे आके उसको यहीं दाखिल करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं।
जी लड़की को के अंदर में उल्टियाँ लगी है, 4-5 दिन हो गए हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कहने बोल रहे ये बीमारी है, इधर लिए इधर इन्होंने भेजा ओपीडी में बताओ, एक्सरे हो गए, उधर भी हुए एक्सरे, फिर बोले उधर नहीं होगा, इसका इलाज इधर होगा। फिर यहाँ से भी बोल दिया अब ओपीडी में दिखाओ सुबह। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, देखो लड़की कैसी चलाई है हमने, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, हमको पता नहीं इधर पंजाब में कैसे ये करते हैं। पहले तो कांगड़ा में थी बीमार, तो वहाँ मतलब थोड़ा मतलब इसको ठीक हो गई थी। वहाँ से मतलब बोला कि आप पीजीआई में ले जाओ इसको। पीजीआई में ला करके यहाँ मतलब 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं हम इधर उधर। लड़की की उल्टी बंद नहीं हो रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं जी मतलब आप वहाँ एक्सरे करो, अल्ट्रासाउंड करो, यहीं तीन अल्ट्रासाउंड तो यहीं हो, पर कोई पकड़ में नहीं आ रही है बीमारी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2767 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 950 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 3785 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 963 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ATC ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 18 ਬੈੱਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ, 5 ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ, 28 ਬੈੱਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ATC 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੋਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। इक्विपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी हमारे को ना नहीं की है। परचेज़ हम करते रहते हैं सामान, पर रश के कारण हम जितना भी सामान खरीदते हैं हमेशा कम ही लगता है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ATC ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ATC ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, जिन्हां चों ऑर्थोपेडिशन ATC दे इंचार्ज की भूमिका निभा रहे हैं। लिमिटेशन है हमारे पास मैन पावर की बेसिकली, तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं अभी नर्सिंग स्टाफ और रिक्रूट कर देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो कितना का करंट है आप 20% हमारे पास लेस शॉर्टेज है इस टाइम शॉर्टेज। अच्छा। और सर अगर हम बात करें जैसे डॉक्टर की स्पेशलिटीज़ की, उसमें तो नहीं कोई पर हम उसको कंपेंसेट कर लेते हैं, उनको ओवर ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को, इवन नर्सेस को, एंड दे डोंट माइंड। हम सोचे थे कि इसके चलते हमारे कुछ राहत होंगे इमरजेंसी सर्विसेज में, जो और भी इमरजेंसी केसेज आते हैं अदर देन ट्रॉमा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दिनों दिन हमारी हालात ये हो रही है कि हमारे को ज़्यादा तत्पर रहना पड़ता है और हमको उसी जो सीमित दायरे हैं हमारे सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, उसी में ज़्यादा लोड को संभालना पड़ता है। मैन पावर क्रंच ICU में है, बिल्कुल है उसमें, क्योंकि सिस्टर्स भी जैसे नॉर्मल जितनी चाहिए उनसे हम लगभग आधे ही हैं जो सिस्टर्स वगैरह है ना हमारे पास। 1:1 रेशो होनी चाहिए, वो हमारे पास ICU में नहीं है। 2:1, एक सिस्टर है 2 बेड्स को देख रही है, आइडियली एक ही देखना चाहिए। तो इस तरह से क्रंच तो है ही है, ना केवल सिस्टर्स का बल्कि डॉक्टर्स का भी देखिए तो वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, 12-12 घंटे उनकी ड्यूटीज़ 12-12 घंटे होती हैं, तो इस तरह से क्रंच तो है ही है। प्रॉब्लम्स मैन पावर की तो प्रॉब्लम्स हैं ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है रेजिडेंट्स के लिए भी और बाकी फैकल्टी और बाकी OT टेक्नीशियन, सिस्टर्स,
तो मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज होने की वजह से जो है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो इतना कोप अप नहीं हो पाता है। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। देना तो चाहिए पर वो कुछ हमेशा पेंडिंग ही रहता है। कितना कर पेंडिंग कुछ है हमारे पास? एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है कि वो तो अकाउंट्स वाले बता पाएंगे, पर हाँ पंजाब गवर्नमेंट के कुछ बेड्स के उन्होंने शेयर देना होता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने देना है, वो देते नहीं है अभी आज के। यस डेफिनेटली। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे ही है, इसको हम ये नहीं कह सकते इम्प्लीमेंट हुई है। इट मे टेक अनदर 2-3 ईयर्स, जिसमें 100 किलोमीटर्स पे ट्रॉमा सेंटर बनाने का है। इन्होंने एक जलंधर में बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, हरियाणा ने करनाल में बनाने की कोशिश की है, उनका चल रहा है, पर इतना हमारे को उसके कारण पीजीआई को कोई ऐसे हेल्प नहीं मिल पाई है। अगर बात करें हिमाचल में, इसका हिमाचल में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना हुआ है अभी। अगर हम बात करें जो एक प्रोसेस था उसके मुताबिक जो रश को उन्होंने कैटर करना था, इससे कोई अभी नहीं कर पाए हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ। बहुत छोटे इंजरीज हों या कुछ हों ट्रामा सेंटर में, तो हम मेडिकल कॉलेज और सेक्टर 16 के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। वहाँ पर हम एवरेज जैसे हम कहें कि एक हफ्ते में कई बार 5 पेशेंट 10-7 पेशेंट हम भेज पाते हैं वापस। अगर हम बात करें इन तीनों स्टेट का, कुछ हमारी मीटिंग वगैरह होती है रश को कम करने के लिए, कुछ हमारी हमने बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है पिछले 3 सालों में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ हरियाणा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग्स इकट्ठे करके कि कैसे हम इस रश को कंट्रोल कर सकें, पेशेंट्स को बेटर फैसिलिटीज़ दे सकें, पर रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ पेशेंट रेफ़र बैक हम कर पाते हैं, पहले हम बिल्कुल भी नहीं रेफ़र कर पाते थे, अब कुछ पेशेंट्स वापस जाते हैं। एक रेफरल सिस्टम बनाया है जिसमें रीज़न लिखना पड़ता है कि पीजीआई को आप क्यों रेफ़र कर रहे हो। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਸੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਏ।